So hi everyone, my name is Sonali. I am a mother of 3.10 years old son who has genetic condition Down syndrome. So this is my very first video, so I don't know if it's perfect or not. So basically I received so many DMs on Instagram uh, where I am sharing journey of my son, that how is he doing, how his learning is going, and how we are taking therapies, and how I am doing everything at home. So I got so many DMs on Insta that how we get to know about MS diagnosis, and was my pregnancy normal, and did we knew before birth, or how I am doing everything at home, are we taking any therapies, and how can they start early learning at home. So here I am. So I'm making MS birth stories video first. So my pregnancy was completely normal. It was a healthy pregnancy, and I think everything was normal, and we didn't know about his diagnosis before birth. And when Ame was born, so he was 1 month preterm baby. So when he was born, so we get to know that doctor is suspecting that he has Down syndrome, because he has few symptoms. Those are very common in Down syndrome kids, like he has single palm crease, he has I think toe gap, and low set of ears, almond eye shape. But by God grace, he was completely healthy, like his all test reports were normal, his heart was completely fine. So I think within a week after a genetic test, it was confirmed that he has Down syndrome. So initially, just like other parents, it was very, very, very overwhelming for me and my husband. We feel lost and confused. My mind was saying something else, and Google was saying different thing, and my heart was saying or thinking completely a different thing. So yeah, बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, दैट वी आर पेरेंट्स, एंड हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ बेसिकली मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम। मैंने सुना था, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो आई दैट क्या होता है ये। सो इन हॉस्पिटल आई हैड अ सी सेक्शन। सो मतलब मुझे वो दर्द ही नहीं याद है कि सी सेक्शन के बाद कोई पेन भी होता है या कुछ भी होता है, बिकॉज हमें ऐसी चीज़ पता चली ना कि हम उसमें ही एकदम वी वर लॉस्ट दैट। बट माई हस्बैंड वॉज पिलर कि नहीं नहीं, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन, तो क्या हुआ, ठीक है, इट्स ओके, जो होना था हो गया, बट वी हैव टू वर्क ऑन आर चाइल्ड। हमें देखना है क्या क्या हम कर सकते हैं। सो येस, माई डॉक्टर एंड एवरी वन वॉज वेरी 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 पॉजिटिव इन दैट हॉस्पिटल। सो शायद मैं इसीलिए बहुत जल्दी ओवरकम कर पाई उस सिचुएशन से, बिकॉज दे वर लाइक, so what, he has Down syndrome, so what, he might be slow, but he will do things on his own pace. So initial जो लोग आपको मिलते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हों, कोई भी स्टाफ हो, या आपके पेरेंट्स हों जो पूरा सपोर्ट करते हैं, सो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो ये मेरे साथ हुआ। माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, and my family members, my husband's family members were all so positive and so supportive. So बहुत जल्दी मैंने overcome करा, and I think when Ame was 15 or 20 days old, I made a decision that what has happened cannot be changed, right? But what we do in next is on our hand. So he is my child, and मुझे हर एक possible चीज़ करनी है to help him grow and learn in better way. So I think I was in maternity leave. I am still a full day working mother. So मैंने इनिशियली क्या करा, पहले मैंने डाउन सिंड्रोम के बारे में सब सर्च करा, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा मिला नहीं। देन आई स्टार्टेड डाउन सिंड्रोम के बारे में, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल, सो दे विल से सेम थिंग, कॉग्निटिव स्लो है, ये है, वो है, आपको थेरेपीज़ लेनी है, एंड नॉर्मल लाइफ
की तरह जी सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी बेसिकली. सो आई स्टॉप्ड सर्चिंग अबाउट व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम और व्हाट इज़ व्हाट. सो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी उसको डाउन सिंड्रोम है, बट आगे क्या, ऐसा तो नहीं है ये इम्पॉसिबल है, उसका कॉग्निटिव अच्छा नहीं हो सकता है. हाँ ठीक है, वो स्लो होगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट. आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर माई चाइल्ड विद एनी वन एल्स चाइल्ड. ठीक है, लेकिन मुझे उसके ऊपर काम करना था. सो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग सो मैनी बुक्स ऑन अर्ली लर्निंग, राइट ब्रेन एजुकेशन, and how we can do therapies. Yeah, how many therapy centers are here in Noida. I'm living in Noida. So I got to know about one center, so I visited there when I was, I think, 1 or 2 months old. Yeah, he's 1 or 2 months, I don't exactly remember. सो आई विजिटेड देयर एंड यू नो, कभी कभी होता है आपको लोग जब बहुत अच्छे मिलते हैं ना, तो आप ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगती है. सो इन आवर केस यही था, हमें जो लोग मिले ना वो भी बहुत पॉजिटिव थे. तो जो हमारी थेरेपिस्ट है, बेसिकली जो हेड है, शी वॉज सो पॉजिटिव, और वो इतने अच्छे से उसने अमेय को टमी टाइम ही इतने अच्छे से दिलाया, एंड अमेय वॉज नॉट क्राइंग. सो उसके तरीके से मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे लगा होता है ना कि एक मदर इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ, शी इज़ द राइट पर्सन फॉर माई चाइल्ड. सो वो मुझे फीलिंग वहाँ आ गई थी. ऑल्दो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो वो बोलते मैं वही करती. बट या, साइड बाई साइड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, एंड सारा मैंने पता करा, रिसर्च वगैरह सारी करी कि डाउन सिंड्रोम बच्चों को कैसे हम आगे रीडिंग करा सकते हैं, कैसे राइटिंग करा सकते. राइटिंग तो बहुत दूर का पार्ट है, स्टिल अमे इज़ वेरी स्मॉल फॉर दैट. कैसे हम स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सकते हैं. यू नो, हमारे थेरेपिस्ट ने एक बात बोली थी, आप वॉकिंग और टॉकिंग इन सब के पीछे मत भागो, आप कोर स्ट्रेंथनिंग पे काम करो. आपके बच्चे का कोर स्ट्रांग होएगा, तभी आगे हर चीज़ वो प्रॉपर करेक्ट पोस्चर में कर पाएगा, करेक्ट वे में कर पाएगा. सो वी started working on that only. And yeah, exercises and therapies का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, but this was our diagnosis story. So I read a lot, and मुझे बहुत सारे DMs मिले कि मैं कैसे अर्ली लर्निंग कर रही हूँ, मैं कैसे थेरेपी ले रही हूँ घर पे. सो गाइज, वन थिंग इज़ क्लियर, आप किसी भी सिटी में हो, आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, आपके पास थेरेपी सेंटर है या नहीं है, बट यू कैन स्टार्ट अर्ली लर्निंग एट होम. राइट, आप अपने बच्चे से बात करो, आप उसको बहुत सारा टमी टाइम दो. इनिशियली बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड्स आते हैं, आप वो दिखाओ, राइम्स गाओ. तो देयर आर मैनी मोर थिंग्स टू डू एट होम. और आप खुद सीखो, बिकॉज थेरेपिस्ट 45 मिनट में आपको सब कुछ नहीं करा देगा. आपको जो भी वो 45 मिनट्स में कराएगा, आप एटलीस्ट घर पे 2-3 बार वो रिपीट करो. मैंने भी करा है वो, और स्टिल आई एम डूइंग इट. वी आर टेकिंग थेरेपी वंस अ वीक, एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग एट होम. हम फ्लैश कार्ड्स हमें को बहुत दिखाते थे. हमें की लर्निंग इज़ वेरी गुड. आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम विद अदर चाइल्ड, बट फॉर अस हिज लर्निंग इज़ वेरी गुड. एंड एज्यूम इंटेलिजेंस, assume your child is intelligent. So that's it. I will share next video. In that I will cover everything, like कैसे हमने therapies करी and क्या हम कर सकते हैं for which age. So might be it will help